everyone. Am I audible to you? वॉइस आ रही है मेरी? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to start simplex method. और लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हाउ टू कन्वर्ट अ प्रॉब्लम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. सो सिंप्लेक्स मेथड के लिए फर्स्ट थिंग इज जो भी प्रॉब्लम मेरे को दी हुई है उसको मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. If it's in standard form, then you can apply and solve the problem directly. So this is the oldest technique for solving the problem. As you know that the graphical method is applicable in case for the two variables only. And if we have more than two variables, then the first technique that comes in existence is the simplex technique, and it was given by George B. Danting. And it's in 1947. So again, the problem is of the type we have an objective functions here and subjected to set of some restrictions and the non-negativity conditions. So as you all know, graphical method से जब हम किसी भी problem को solve करते हैं तो एक feasible reason होता है. And in that particular reason, there are the feasible solutions होते हैं that may be infinite in number. तो उसमें से जो optimum solution होता है वो possible नहीं होता कि हम उसको कैसे इतने सारे feasible solution में से optimum solution कैसे find out कर पाएं. तो basically the simplex technique से हम अपना optimum solution निकालते हैं and इसका एक particular procedure है जिसको हम फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए. तो इसको बहुत ही केयरफुली देखना कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है. तो आई एम गोइंग टू टेक अ प्रॉब्लम डायरेक्टली. और सबसे पहले अगर प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं उस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी. वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, मैक्सिमाइज ऑफ z. इसका मेरे को ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है. It's in two variables. सबसे पहले मैं two variables के लिए problem ले रही हूँ so that the method will be clear. Then we will solve for more than two variables. इस problem को because it's in two variables, so we can solve this problem by graphical method also. It's less than equal to 2 with the non-negativity restrictions. x1 x2 greater than equal to 0. So this is an objective function. ये मेरे पास objective function है यहाँ पर. These are the constants and these are non-negativity restrictions. So if you remember, standard form के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है that must be in the maximization form. It's in maximization form. Right hand side is positive
it's given as positive, and if the variable is unrestricted in sign, तो मुझे उसको unrestricted condition को remove करना पड़ेगा by subtracting the difference between two positive variables. तो यहाँ पर variable unrestricted नहीं है, तो उसकी requirement नहीं है. And one more thing, जो भी मुझे यहाँ पर inequalities दी हुई है उसको मुझे slack variable add करके या surplus variable subtract करके equalities में convert करना होगा. तो मैं यहाँ पर rest of the conditions are satisfied here. Only thing is that we have to add or subtract the variables. Now the inequality is less than equal to symbol, so we have to add some variable on the left hand side. तो मैं यहाँ पर जो variable add करूँगी, that will be the slack variable. So first thing is convert the problem into the standard form. तो इसकी जो standard form होगी, it will be 3x1 2x2, एक वेरिएबल s1 ऐड होगा विद द कॉस्ट 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्वियसली जितने भी वेरिएबल्स मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी सबकी जो कॉस्ट होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो 0 होगी. सो दिस इज x1 प्लस x2 सब्जेक्टेड टू प्लस s1 इज इक्वल टू 4 एंड x1 minus x2 plus s2 is equal to 2, and variables are x1, x2, s1, s2 is greater than equal to 0. So this is the standard form. Now next step is write down it in the matrix form. तो इसको मैं matrix form में लिख सकती हूँ. If I am taking ax equals to b, मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं इन 4 वेरिएबल्स, तो इसको मुझे ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना है. यू कैन राइट इट सिंपली. फोर वेरिएबल्स हैं मेरे पास. तो फर्स्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट मींस द कोफिशिएंट ऑफ x1. This is for the coefficient of x2, coefficient of s1, and in the first equation coefficient of s2 is 0. Again coefficient of x1, x2. Now here coefficient of s1 is 0. Coefficient of s1 is 0 and coefficient of s2 is 1. With 4 variables x1, x2, s1, s2, and b is 4 and 2. So in the first step you have to convert the given problem into the standard form, then write down it in the matrix. Now in the third step we have to draw the simplex table. Is it clear to you? यहाँ तक clear हुआ है? Yes or no? Yes, Mayank, any problem? Fine. आप लोग अपना माइक ओपन ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? जरूरी नहीं है कि हर बार चैट पे लिखा जाए. मैम ये मैट्रिक्स में जो लास्ट वाला कॉलम है ना उसमें 0 1 कहाँ से है? यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखो. फर्स्ट इक्वेशन का जो कॉफिशिएंट है, हम सबके कॉफिशिएंट लिख रहे हैं. हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं. तो x1 का कॉफिशिएंट 1 है, x2 का कॉफिशिएंट 1 है, s1 का कॉफिशिएंट 1 है. दिस इज फॉर s1. और फर्स्ट इक्वेशन में s2 है ही नहीं तो 0 हो गया. सेकेंड इक्वेशन में x1 का कॉफिशिएंट 1 है, x2 इज -1, s1 है ही नहीं सो इट्स 0 और s2 का कॉफिशिएंट 1 है. इट डिनोट्स यहाँ पर 0 इंटू s2 है, यहाँ पे 0 इंटू s1 है. क्लियर? यस मैम. इसको आप मल्टीप्लाई कर लो ना, यू विल गेट दीज इक्वेशंस, यही आएंगी. ठीक है? सो इन द नेक्स्ट स्टेप मैं अब इसकी सिंप्लेक्स टेबल में इसको इंक्लूड कर रही हूँ. तो
थोड़ा ध्यान से देखो कि टेबल हमें कैसे ड्रॉ करनी है। सिंप्लेक्स टेबल के लिए सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स, जिनके लिए मैं इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ, तो जो भी वेरिएबल्स मैंने इंक्लूड करे हैं, मतलब S1 S2 वेदर इट्स स्लैक और द सरप्लस वेरिएबल, मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ S1 S2। नेक्स्ट इज CB। CB डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ दीज टू वेरिएबल्स। S1 की कॉस्ट कितनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? दिस इज 0, दिस इज अगेन 0। Next column will be XB. XB means this is right hand side, which is 4 and 2. उसके बाद जो वेरिएबल्स यहाँ पर हमने ऐड करे हैं, तो मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल है X1, सेकंड वेरिएबल है X2, थर्ड वेरिएबल X3 which is nothing but S1, फोर्थ वेरिएबल है X4, दिस इज फॉर S2। तो जो मेरी ये मैट्रिक्स बनी है उसको मैं पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 1 1 0 1 -1 0 1। Now Z is equals to CBXB. Means 0 into 4 plus 0 into 2, so the value is 0 here. The last column is for the minimum ratio, and यहाँ पर मेरे को जो evaluate करना है del J evaluate करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स लिखे हैं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली और थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमने बेसिक वेरिएबल्स लिखे हैं, वो वेरिएबल्स जिनके लिए हम अभी फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज द रिपीटेड प्रोसीजर इन द सिंप्लेक्स। हमें इसी प्रोसीजर को हर स्टेप पर रिपीट करना है, और कब तक रिपीट करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये इटरेशंस कितनी बार करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मुझे बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, जो वेरिएबल्स मैंने इंक्लूड करे हैं और जिसके लिए मैं अभी फर्स्ट इटरेशन को सॉल्व कर रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर S1 and S2. Corresponding cost of S1 and S2 is 0, and the XB denotes the right hand side, which is 4 and 2. After that I have included the complete matrix. जितने भी यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स थी वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर दो चीजें इवैल्यूएट करनी है, एक तो मुझे एंटरिंग वेक्टर निकालना है और एक मुझे आउटगोइंग वेक्टर निकालना है इस टेबल में से। इफेक्टिवली मैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, कि X1 और X2 की किस वैल्यू पर मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, X1 और X2 की किस वैल्यू के लिए ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अभी ये जो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ S1 और S2 के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ से ये दोनों वेरिएबल्स रिमूव करने हैं, यानी S2 रिमूव करके या तो X1 एंटर करेगा या S1 रिमूव करके X2 एंटर करेगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि कौन सा मेरा एंटरिंग वेक्टर होगा इन द नेक्स्ट इटरेशन और कौन सा मेरा लीविंग वेक्टर होगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डेल जे इवैल्यूएट करना है। डेल जे इवैल्यूएट करने का एक फॉर्मूला हमारे पास है, डेल जे मीन्स ZJ minus CJ, and ZJ is equals to CBXJ minus CJ. CJ means जो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में गिवन है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास यहाँ पर है 3x1 plus 2x2 3 2 0s1 and 0s2, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट थी, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये
3x1, 2x2, 0s1, 0s2. So the coefficient denotes the Cj. दिखता है ना C1x1, C2x2. So this is for 3, 2, 0 and 0. Now अब मुझे ये इवैल्यूएट करना है del j, means for the first column del 1, del 2, del 3 and del 4. del 1 हम इवैल्यूएट करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया CB xj माइनस CJ. तो del 1 is equals to CB x1 माइनस C1. j की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया. CB means this is the cost 0 0. x1 means ये जो कॉलम है हमारा फर्स्ट कॉलम 1 1 माइनस C1 means 3. So it's equals to 0 into 1 plus 0 minus 3 minus 3. In the same way, you can evaluate del 2, which is 0 into minus 0 into 1 plus 0 into minus 1 minus 2. So del 2 is minus 2. So you can see in the first iteration जो भी Cj given मेरे पास होगा उसका नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा. So del 1 is minus 3, this is minus 2. थर्ड अगर मैं इवेल्युएट करूंगी तो 0 into 1 plus 0 into 0 minus 0, this is 0, and del 4 0 into 0 plus 0 into 1 minus 0. So this is my del j. Is that okay? यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या इवेल्युएट करा है यहाँ पे? सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ करिए. सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर डेल जी इवेल्युएट करा है, और डेल जी इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है विच इज जेड जे माइनस सी जे. मतलब जो ये कॉलम्स यहाँ पर दी हुई हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सी जे. तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 into 1 plus 0 into 1 minus 3, then 0 into 1, 0 into minus 1, this is for del 2, del 3 and del 4. Now in the next step, इन जितने भी डेल्स मैंने इवेल्युएट करे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिनिमम डेल जे देखना है. व्हाट विल बी द मिनिमम अमॉन्ग ऑल द डेल्स. तो कौन सा मिनिमम है यहाँ पे? इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम है बताओ? विच वन इज द मिनिमम वैल्यू? यस, कौन सी मिनिमम है? एम आई ऑडिबल टू यू? मयंक, सुमानी, आवाज नहीं आ रही है आपको? I'm not getting any response from your side. 22 students are here, but मेरे को किसी की तरफ से नहीं मिल रहा है. Unmute your mic, or I'm asking to you which is the minimum value. -3. अक्षिता, आप माइक को ऑन करके भी बोल सकते हो. आई एम नॉट अवेलेबल फॉर चैट ऑलवेज. ओके मैम. हाँ, मैं पूछ रही हूँ तो इट सीम्स दैट कि सुनाई दे रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि क्लास में वो ठीक से कम्युनिकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है. दैट इज द ओनली रीजन. ओके, so -3 is the minimum del j. This is minimum of del j. तो नेक्स्ट स्टेप पे मुझे del j की मिनिमम वैल्यू देखनी है, और वो जो वेक्टर होगा that will be my entering vector. This is entering vector. अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? एक वेक्टर एंटर करेगा और एक वेक्टर लीव करेगा. अब हमें एंटरिंग पता चल गया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे लीविंग वेक्टर निकालना है. लीविंग वेक्टर के लिए मुझे क्या निकालना होगा? मिनिमम रेशियो निकालनी होगी, एंड मिनिमम रेशियो विल बी इक्वल्स टू एक्स बी
बाय x1, जो कॉलम एंटर कर रहा है उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। तो x भी मेरे पास यहाँ पे 4 है, दिस इज 4/1 एंड दिस इज 2/1। नाउ विच इज मिनिमम अमॉन्ग दीज टू? दिस इज 4, दिस इज 2, तो 2 मिनिमम है, इसका मतलब ये मेरा लीव कर जाएगा। सो एंट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिनिमम रेशियो इवैल्यूएट करनी है और उस मिनिमम रेशियो में से जो वैल्यू कम होगी वो मेरा वेक्टर लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो एंटर कर रहा है वो x1 एंटर कर रहा है और s2 लीव कर रहा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज माय की एलिमेंट जो कि कॉमन है दोनों में, s2 पे और x1 पे जो लीव और एंटर पे कॉमन एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट इज नोन एज द, दिस इज की एलिमेंट और इसको बोलते हैं पाइवट एलिमेंट ऑल्सो। की एलिमेंट और पाइवट एलिमेंट दैट मस्ट बी 1। तो अगर ये 1 नहीं है, सपोज ये 1/2 होता तो मुझे उसको 1 करना होता। 1/2 को 1 करने के लिए मैं क्या करती, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती। लकीली इट्स 1 हियर, तो यहाँ पर इसलिए मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। तो डू रिमेंबर वन मोर थिंग, अगर की एलिमेंट मुझे जो भी दे रखा है दैट मस्ट बी 1। अगर 1 नहीं है तो मुझे कोई भी ऑपरेशन लगा के सबसे पहले उसको 1 करना होगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप की एलिमेंट मस्ट बी 1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दैट मस्ट बी 0। और आप एक चीज और यहाँ पर नोटिस कर सकते हो या देख सकते हो, जो भी बेसिक वेरिएबल्स यहाँ इंक्लूड होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगी दैट मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे S1 और S2 है, तो S1 और S2 की जो मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट हो रही है दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम बोलते हैं बेसिस भी बोलते हैं इसको। You see that this is basis matrix, basis matrix. So key element is 1 और की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग उस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। तो मैं एक ऑपरेशन ऐसा लगाऊंगी जिससे ये एलिमेंट 0 हो जाए इन द नेक्स्ट इटरेशन। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, x1 तो एंटर कर रहा है और s2 लीव कर रहा है। अब मैं वापस से एक सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें मैं वेरिएबल्स चेंज करूंगी और इस प्रोसेस को मुझे तब तक रिपीट करना है, द सेम प्रोसेस जो हमने इसमें करा है तब तक रिपीट करना है जब तक कि ये सारे के सारे जो डेल्स हैं वो पॉजिटिव नहीं हो जाते। अगेन आई एम ड्रॉइंग द सिंप्लेक्स टेबल हियर। Basic variables, cost, XB, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो S1 S2 एग्जिट कर रहा है और X1 एंटर कर रहा है। X2 की जगह आ गया X1। नाउ द कॉस्ट ऑफ X1 S इज 0 और X1 की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिया हुआ है इट्स 3। ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। नाउ यहाँ पर आप देखोगे XB इज 2, सेम यही इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो मैं इसको कुछ ऑपरेशंस लगा के 1 में कन्वर्ट करती पहले। X1, X2, X3, X4 and this is 1, -1, 0, 1। अब आप यहाँ पर अगर इफ यू वांट टू चेक देन यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स S1 और X1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे बेसिस में जो मैट्रिक्स जनरेट होगी दैट मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मिनिमम रेशो सेम बिल्कुल जैसे अभी पहले वाले प्रॉब्लम में हम पहले वाले इटरेशन में हमने करा है
वही इवेल्युएट करना है, डेल्स इवेल्युएट करना है मुझे अब इस टेबल में। अब बिकॉज द की एलिमेंट इज 1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग के सारे एलिमेंट्स 0 होने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो उसी कॉलम में एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर वो रो लिखो जिसको मुझे 0 करना है, इस एलिमेंट को मुझे 0 करना है, 4 के साथ वाला जो 1 है। और दूसरी मेरे पास जो की एलिमेंट है उसको मैं लिख रही हूँ -1 0 1 and subtracting, simply subtracting, so I'm getting 2, this is 0, 1 plus 1 minus 1, this is 2, 1 and -1। इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ, 2 0 2 1 -1। यही मैंने आपको बताया था यहाँ पर की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट उस कॉलम में होगा तो हमें उसको क्या करना है, 0। नाउ यू चेक दैट पहला एलिमेंट मेरे पास S1 है, मीन्स ये वाला कॉलम, दिस इज 1 0, दूसरा X1 है 0 1। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स यहाँ पर जनरेट होगी दैट मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अगेन वी हैव टू इवेल्युएट डेल जे। यहाँ पर अब मुझे वापस से डेल जे इवेल्युएट करना है जैसे पहले वाले इटरेशन में हमने किया था। Z is equals to CBXB, 0 into 2 plus 3 into 2. So it's 6. This is del J. Del J मैंने बताया फर्स्ट कॉलम के लिए मैं कर रही हूँ तो 0 into 0 plus 3 into 1, और यहाँ पर जो कॉस्ट चल रही है दिस इज अगेन CJ, सेम चल रहा है 3 2 0 and 0। So 0 into 0 plus 3 into 1 minus 3. It's 0. 0 into 2 plus 3 into -1 minus 2. So it's -5. 0 into 1 plus 3 into 0 minus 0. This is 0. And 0 into 0, 3 into 1 minus 0. This is 3. Now you see that we again have one del j which is negative. अगर यहाँ पर ये मेरा पॉजिटिव आ जाता then we get the solution, but अगर ये नेगेटिव है तो मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, we have to repeat the procedure again, means एक वेक्टर मेरे को एंटर करवाना पड़ेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक वेक्टर लीव करेगा। तो यहाँ पर बिकॉज नेगेटिव del j is -5, so this is my entering vector, this is entry, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब मैं क्या निकालूंगी, मिनिमम रेशियो, मींस xb by x2, so it's 2/1। सेकंड में 0 आ रहा है सो नो नीड, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नेगेटिव को और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इट्स 2/1। by 1 which is 2 और सेकंड ऐसे ही रह जाएगा। तो we have only one option here, so corresponding to entering vector x2, s1 is leaving the basis, और ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट which is my key element। okay, now in the next step हमें देखना है की एलिमेंट क्या होना चाहिए, की एलिमेंट must be 1 बिकॉज इट्स 2 और मुझे इसको 1 करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे के पूरे रो को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर दूंगी 2 से। नाउ ड्रॉ द थर्ड टेबल फॉर द थर्ड इटरेशन। S1 लीव कर रहा है और X2 एंटर कर रहा है, तो S1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे X2, दिस इज X1, कॉस्ट ऑफ X2 इज, it's given in the problem, objective function में दी हुई है, it's 2
एंड इट्स 3. नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक, बिकॉज इट्स 2 तो, और इसको मेरे को 1 करना है, तो मैं इस पूरी की पूरी रो को 2 से डिवाइड कर रही हूँ. 2 से डिवाइड करने के बाद आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ xb इज 1. दिस इज 0, 1, 1/2, -1/2. ओके. और जिस रो में की एलिमेंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब ये वाला जो एलिमेंट है, दिस मस्ट बी 0. तो मेरे को इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट राइट डाउन उस रो को लिखो जिसमें मैंने 1 की एलिमेंट को 1 करा है. नाउ राइट डाउन दिस रो जिसमें मेरे को 0 करना है. तो इट्स 2, 1, -1, 0, 1. इसको 0 करने के लिए क्या होगा, सिंपली ऐड कर दिया मैंने. So it's 3, this is 1, this is 0, this is 1/2, and this is 3/2. -1/2 plus this is 1/2, again 1/2. -1/2 plus 1. Wait. ये वाली रो लिखनी है 1, 0, 1, 1/2, -1/2. देन राइट डाउन द रो जिसमें 0 करना है, 2, 1, -1, 0, 1. सिंपली सब्ट्रैक्टेड. तो ऐड करा, इट्स 3, दिस इज 1, 0, 1/2, एंड दिस इज -1/2 प्लस 1. तो ये कितना हो गया, 1/2. राइट डाउन हियर. नाउ वी गेटिंग 3, 1, 0, 1/2 एंड 1/2. अगेन इवैल्यूएट डेल जे. तब तक इटरेशंस करते रहना है जब तक कि सारे के सारे डेल जे मेरे पॉजिटिव नहीं आ जाते. नाउ इस वाले इटरेशन के लिए मैं डेल जे इवैल्यूएट कर रही हूँ. तो del j this is z is equals to cbxb, which is 2 into 1 plus 3 into 3, it's 11. Now del j evaluate करने के लिए this is 3, 2, 0, 0. So 2 into 0 plus 3 into 1 minus 3, this is 0. 2 into 1 plus 3 into 0 minus 2, again 0. 2 into 1/2 plus 3 into 1/2 minus 0. 5/2. 2 multiplication with -1/2 plus 3/2, this is 1/2. Now you see that in this iteration all the del j's are greater than 0. So the optimal solution here is, you just write it down, since all del j are greater than equal to 0, therefore so optimal solution is x1 की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 3 and x2 is 2. x1 is equals to 3, x2 is equals to 2, and maximize of z is कितना हो गया maximize of z हमारा, ये इवैल्यूएट हुआ है, this is 11. So this is the solution using simplex method. Any problem? Any problem? Note down some points here. First point मेरे पास आता है, if all del j's are greater than 0, then solution under test is optimal.
जैसा कि अभी इस प्रॉब्लम में हुआ है, सारे के सारे डेल्जीज मेरा पॉजिटिव आ गए थे इन द थर्ड इटरेशन, सो हम सॉल्यूशन हमारे पास ऑप्टिमल आ गया। सेकंड पॉइंट में अगर कोई भी एक डेल्जी नेगेटिव रहता है तो हमें इस ई प्रोसीजर को रिपीट करना है, तब तक रिपीट करना है जब तक कि सारे के सारे डेल्जीज पॉजिटिव नहीं आते। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी डेल्जे, इफ corresponding, this is the important point, corresponding to any del j, all the elements in the column all the elements of the column xj are negative और 0। ठीक है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है, देन सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी अनबाउंडेड। मतलब इस पॉइंट पे हम क्या कह रहे हैं, अगर सारे डेल्जी पॉजिटिव आ जाते हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन अटेन करेगा। बट अगर किसी डेल्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, सपोज इसी प्रॉब्लम में अगर मैं देखूं किसी भी डेल्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, अगर वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हो या 0 हो, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है वो अनबाउंडेड होता है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो या तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल अटेन करेगा या तो नहीं करेगा। So this is the problem which can be solved using the simplex technique. Now next we will see one more problem that consists of 3 variables by the simplex technique. So I hope it's clear to you. अगर नहीं होता है then watch this video again and try to solve 1-2 problems based on the simplex technique. Now ये रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ देख सकते हैं? मैं आज शेयर कर दूंगी आपको ये वीडियो ना, वीडियो का लिंक, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। ओके, विल शेयर द लिंक ऑफ। ओके, एनी अदर इशू? एक बारी में जब तक अपने हाथ से प्रॉब्लम नहीं करोगे तो इट वॉन्ट बी क्लियर, 100% नहीं क्लियर हो सकता। तो इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। और जब तक हम दूसरी टेक्निक पर जाते हैं तो एटलीस्ट सिंप्लेक्स की ये मेथड क्लियर होना चाहिए, बिकॉज रेस्ट ऑफ द टेक्निक्स डिपेंड ऑन द सिंप्लेक्स मेथड। अभी आगे जितना भी पढ़ना है तो सभी इसी तरीके से सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स, तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर। तो मैं अभी आपको वापस बोल रही हूँ, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड, because the dual simplex, two-phase method all depends on the simplex. ठीक है, तो ये अभी हमने बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ली थी जो आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होती है तब मैं इसमें एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल का और कराऊंगी। इज दैट ओके टू यू? इट्स गोइंग टू बी एंड, दिस इज द लास्ट मिनट। Clear? Fine.